OLE, the utopian world of online education. Hello everyone, welcome to OLE. Today we are going to start one of the important segment under the financial statement of not-for-profit organization, that is treatment of subscription. Subscription, as you know, we had studied earlier in the classes that subscription is one of the recurring nature income of a particular not-for-profit organization, in short NPOs. So recurring nature income है, so always transfer to the income and expenditure account, right? And income and expenditure account में आएगी तो as per the features or characteristics of income and expenditure account, always current year subscription will be considered, because income and expenditure account के जो features हैं उसमें one of the feature is income and expenditure account always focus on the current year figure, not previous year, not future year, right? So it is one of the, we can say that, important adjustment in the not-for-profit organization financial statements. Generally in long answer question, means 8 marks questions, ये इसका जो treatment है, that will definitely ask in the question, and you will find almost in every question that the treatment of subscription or adjustment regarding the subscription, right? So it is one of the important segment, and always try to focus on the treatment or adjustment of subscription in the income and expenditure account, right? So students, now we will see the treatment. There are 4 type of treatment of subscription under the income and expenditure account, and these are most important. You will find in every question, as I earlier told you, right? So do concentrate. First, subscription received in advance. Advance मिला है, keywords पे ध्यान दीजिएगा, do focus. Subscription received in advance at the end of the current year. Current year के end में, right? And we have to focus only on current year क्योंकि income and expenditure में treatment करना है. Just remember, right? So subscription मिला advance में, advance means जो अभी due नहीं हुआ था, right? At the end of the current year. At the end of the current year. It means that current year के end में advance मिला तो obviously ये current year से related नहीं हुआ, ये तो related हुआ for future period से related, right? So क्या treatment होगा? In short में यहाँ mentioned है related to future period, right? कुछ shortcut manner adopt किया है for explanation purpose के लिए, and easy going method है, तो future period से related हुआ, right? जब फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो ये डिडक्टेड हो जाएगा, बिकॉज करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में इनबिल्ट है, क्योंकि रिसीव्ड हुआ है, एज यू सी, राइट? एंड दूसरा, नेक्स्ट, एडवांस इनकम एज पर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, ऑलवेज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, राइट? सो लायबिलिटी साइड में आएगा, एंड बैलेंस शीट में शॉर्ट में मेंशन्ड है एट द एंड, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर में मिला है, सो बैलेंस शीट जो एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ प्रिपेयर करेंगे उसमें ये लायबिलिटी साइड में शो, राइट? कम टू द नेक्स्ट ट्रीटमेंट, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. यहाँ भी एडवांस आया है, राइट? बट एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर, करंट ईयर के बिगिनिंग में, मीन्स अगर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल आपका है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, सो जो 1 अप्रैल 19 में आपको रिसीव हुआ, राइट? एडवांस में, यानी आपको बिगिनिंग में रिसीव हो गया एडवांस में, तो ये फिर रिलेटेड हुआ करंट ईयर से, क्योंकि अभी जो करंट ईयर है वो तो हमारा रनिंग है, अभी वो लैप्स नहीं हुआ है, सो इट इज रिलेटेड टू प्योरली करंट ईयर, राइट? नेक्स्ट, जब करंट ईयर से रिलेटेड है तो एज पर द फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इट विल बी एडेड बैक. नेक्स्ट, एडवांस है, देन इट
definitely it will be shown on the liabilities side, but balance sheet at beginning में, because it is related to beginning, not end. Because in the long answers you have to prepare the balance sheet two times, first at the beginning of the year, next at the end of the year. Beginning of the year की balance sheet generally prepare की जाएगी for the purpose of finding out the capital fund, means capital amount in short अगर आप general बोले, because in generally in most of the questions capital fund mention नहीं होता है and you have to find out. तो कैसे find out करेंगे? by preparing the opening balance sheet, क्योंकि कैपिटल एट द बिगनिंग में निकालना है, बिकॉज ईयर के शुरुआत में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड थी एंड ड्यूरिंग द ईयर उसमें क्या चेंजेस आए बाय सरप्लस और डेफिसिट एज अ केस में भी, तो वो भी एडजस्ट होता है, राइट. सो ये बिगनिंग की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडेड हो जाएगा, राइट. ये जो डिडक्टेड और जो एडेड है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पर्पज से है. ऑलवेज रिमेंबर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पर्पज से है. Always remember, income and expenditure account, right? Next, come to the third point, third adjustment. Subscription outstanding at the beginning of the current period. और यहाँ outstanding वर्ड आ गया. Outstanding means still अभी हमें मिलना बाकी है. In general, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जनरली आप accrued भी बोल सकते हैं, because it is yet to be received at the year end or at the beginning of the year as the case may be. And when it is still to be received, right, then it's your asset obviously. But क्योंकि beginning से related है और जो beginning में सबको पता है कि जो beginning में ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, जो वैल्यूज हमारी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आती हैं वो वैल्यूज ब्रॉट फॉरवर्ड होती हैं कब से? फ्रॉम द लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर की क्लोजिंग करंट ईयर की ओपनिंग, राइट. सो जब ये आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टिल टू बी रिसीव्ड है एज ऑन 1st of April 2019 सपोज, तो ऑब्वियसली ये पर्टेन कर रहा होगा लास्ट ईयर से, यानी लास्ट ईयर की क्लोजिंग में भी ये स्टिल टू बी रिसीव्ड होगा, राइट. सो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर हो गया डायरेक्टली, और जब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो डिडक्ट कर देंगे, राइट. और क्योंकि स्टिल टू बी रिसीव्ड है, स्टिल टू बी रिसीव्ड है तो इट्स योर एसेट बिकॉज एक्रूड इन नेचर, एंड एसेट्स में तो जाएगा बट एट द बिगिनिंग है तो बैलेंस शीट एट बिगिनिंग की बैलेंस शीट में इसको शो कर देंगे, राइट. और डिडक्टेड एज इट इज कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, right. Fourth and last treatment of subscription. Subscription outstanding at the end of current year. Outstanding है at the end of current year. तो यानी accrued हो गया, मिलना बाकी है, और at the end of current year हुआ, right. तो यानी ये outstanding है, still to be received है at the year end, तो यानी ये during the year से related हुआ, right. And when it is related to during the year, तो ये current period का हो गया. और करंट पीरियड पर फोकस करना है तो ऐड हो जाएगा कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट. एंड स्टिल टू बी रिसीव्ड है सो एसेट्स में आएगा बाय इट्स नेचर एक्रूड, एंड कहां पे? बैलेंस शीट एट द एंड, क्योंकि करंट ईयर के एंड में है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएगा. एंड मींस जो एंड ऑफ द करंट ईयर की एंड में जो बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी, राइट. सो दिस इज अ शॉर्टकट, एक तरीके से है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो बुक्स में मेंशन्ड होता है, राइट, उसको एक इजी गोइंग मैनर में और शॉर्टकट मैनर में एक्सप्लेन किया गया है, राइट. सो एंड डू फोकस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इन होल चैप्टर, दैट इज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं, राइट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एट द एंड ऑफ द ईयर का एडवांस है, फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड होगा, डिडक्टेड होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा. नेक्स्ट लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट एट द एंड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर करंट ईयर में मिला है, राइट. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर,
एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। एडवांस मिला है, बिगिन में मिला है तो करंट पीरियड से रिलेटेड हुआ, सो करंट ईयर। नेक्स्ट एडेड कर दिया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, देन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एट बिगिनिंग में इसको शो कर देंगे क्योंकि बिगिनिंग से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग है, येट टू बी रिसीव्ड है और बिगिनिंग में है, सो प्रीवियस ईयर में से रिलेटेड हो गया क्योंकि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग रही होगी तभी फर्स्ट अप्रैल को आई। नेक्स्ट डिडक्टेड भी हुआ क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में इसको शो कर देंगे, राइट, बैलेंस शीट एट बिगिनिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट पीरियड, एट द एंड ऑफ द करंट पीरियड। सो करंट ईयर की बैलेंस शीट करंट ईयर से रिलेटेड है क्योंकि करंट ईयर में की आउटस्टैंडिंग है, सो एडेड बैक अंडर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and shown on asset side of the balance sheet at the end, right? So do focus. So बच्चों, now see a practical solution, right, regarding the treatment of income and expenditure account में subscription का, right? So question क्या है देखते हैं। From the following information calculate the amount of subscription टू क्रेडिटेड, क्योंकि इनकम है तो क्रेडिट होगी, अंडर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। तो जिस साल का है, जिस साल से पर्टेन कर रहा है, दैट इज वो हमारा करंट ईयर होगा। जैसे यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, तो दिस इज योर करंट ईयर, CY मार्क। सो इस साल से फोकस करना। सो करंट ईयर 31 मार्च 2019, सो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर एंडेड होगा 31 मार्च 18 और जो फ्यूचर ईयर होगा वो 31 मार्च 20, राइट। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पॉइंट मेंशन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 18, करंट ईयर 31 मार्च 19 और ये है 31 मार्च 18, तो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। शॉर्ट में लिख लेते हैं, याद रखने में आसानी होगी, राइट, PY प्रीवियस ईयर क्योंकि लास्ट ईयर से रिलेटेड है, 4500 रुपीज। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यहां भी एडवांस मिला बट एज ऑन 31 मार्च 19, हमें करंट ईयर के एंड में मिला, तो जाहिर सी बात है रिलेटेड होगा फ्यूचर ईयर से, तो FY, राइट, कितना 5000 रुपीज, बहुत इजी। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 2019, क्योंकि जब करंट ईयर हमारा एंड हो रहा है दैट इज एज ऑन 31 मार्च 19, तो ये बिगिन हुआ होगा 1st ऑफ अप्रैल 2018, तो ये हमारा हो गया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19, तो ये रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ये नहीं लिखा है कि सिर्फ ये करंट ईयर का ही है, ये ड्यूरिंग द ईयर में रिसीव हुआ है, तो माइट भी इसमें ये फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड एडवांस भी इंक्लूड होगा और जो लास्ट ईयर हमारी कोई आउटस्टैंडिंग रह गई होगी, राइट, मींस स्टिल टू बी रिसीव्ड, जिसको एक्रूड भी बोलते हैं इन केस ऑफ इनकम, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एज वेल एज फॉर फ्यूचर ईयर टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर, राइट। सो कितना है 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18, आउटस्टैंडिंग है यानी एक्रूड है, स्टिल टू बी रिसीव्ड है और 31 मार्च 18 को है, तो यानी ये लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो गई, राइट। सो ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, शॉर्ट में मार्क कर लेते हैं 16,000 रुपीज, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 19, यानी करंट ईयर का हो गया, क्योंकि 31 मार्च 19 तो हमारा करंट ईयर एंडेड है, दैट इज अमाउंट टू रुपीज 12,000, ठीक है ना। नाउ इसको हाउ टू रिप्रेजेंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करना है, लेट्स सी। सो इट इज द इनकम, तो इनकम साइड में आते हैं
एक्सपेंडिचर आपकी डेबिट साइड और इनकम आपकी क्रेडिट साइड, राइट। सो सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड हुआ था। कितना रिसीव हुआ है लिख लेते हैं, 80,000 रुपीज। सो 80,000 रुपीज, करेक्ट। नेक्स्ट एक एक करके ट्रीटमेंट करते जाते हैं। सो सब्सक्रिप्शन फर्स्ट मेंशन्ड है रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 18। तो प्रीवियस ईयर में मिला तो हमें प्रीवियस ईयर में, राइट, लेकिन ये रिलेटेड हुआ, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो मिला था लेकिन रिलेटेड हुआ ये करंट ईयर से। पीवाई मतलब रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर में मिला बट रिलेटेड टू करंट ईयर। सो इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड है, तो लिखेंगे आप ऐड सब्सक्रिप्शन, इन शॉर्ट सब्सक्रिप्शन एडवांस, ठीक है, और डेट मेंशन कर दीजिए 31 मार्च 18, ठीक है। कितना 4,500 रुपीज ऐड कर लेते हैं, 84,500, राइट। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 19। तो ये फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड हुआ क्योंकि करंट ईयर के एंड में एडवांस मिला है, राइट। सो डिडक्ट कर देंगे जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले रूल में देखा था। सो यहां पे कर देंगे लेस, शॉर्ट में सब्सक्रिप्शन, मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं बट इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट डाउन द होल स्पेलिंग, मींस सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में एज ऑन 31 मार्च सो एंड सो, राइट। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस ब्रैकेट में 31 मार्च कब है 19 को, राइट। तो 19 में कितना मिला 5,000 रुपीज, तो ये लेस हो जाएगा। और नेगेटिव आइटम ऑलवेज ट्राई टू शोन इन ब्रैकेट सो दैट, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है अक्सर जल्दी में ऑफनली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तो लेस हो जाता है लेकिन क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन करनी है तो मैनुअल कैलकुलेशन के केस में यहाँ तो लेस लिख दिया लेकिन जल्दी में हम लोग क्या कर गए इसको ऐड कर गए, तो आपका पूरा होल ट्रीटमेंट ही गलत हो गया, राइट। कंसिक्वेंटली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही गलत हो जाएगा अगर सरप्लस या डेफिसिट व्हाटएवर जो भी उसमें आ रहा होगा, अगर ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन गलत हो गया, राइट। सो ऑलवेज ब्रैकेट में शो कर दीजिए। तो 84,500 माइनस 5,000 दैट इज 79,500, ठीक है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 को रिसीव हुआ है, आउटस्टैंडिंग था सॉरी, तो यानी करंट ईयर में रिसीव हुआ बट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर हुआ 16,000 रुपीज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। सो इसको क्या कर देंगे हम, क्योंकि बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग है तो माइनस कर देंगे, राइट। तो यहां पे लेस सब्सक्रिप्शन ओएस आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 यानी लेस होगा कितना 16,000 रुपीज, माइनस कर लेते हैं, राइट। तो कितना माइनस करने पे आएगा 79,500 माइनस 16,000, ठीक है। तो यहां पर आ जाता है आपका 63,500, राइट। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
एज ऑन 31 मार्च 19, यानी ये करंट ईयर का हुआ। सो 12,000 करंट ईयर का है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो एडेड बैक कर देंगे। एड सेम वैसे ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में 31 मार्च 19, राइट। कितना? 12,000 रुपीज। ऐड है तो प्लस वाला आइटम ब्रैकेट में शो करने की जरूरत नहीं है, तो 12,000 यहाँ पर ऐड करेंगे तो नीचे आपका आ जाएगा। और क्योंकि ये फाइनल फिगर है तो यहाँ नीचे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए आउटसाइड अमाउंट कॉलम में, दैट इज 75,500, राइट। और क्योंकि ये सिर्फ शो करने के लिए है, यहाँ पे कोई अकाउंट टैली नहीं करना है, सो अमाउंट कॉलम में डैश, right? So this is the whole treatment of subscription in case of income and expenditure account. In case of income and expenditure account, right? Let's see, एक बार फिर से हम solution देखते हैं under the income and expenditure account में, quick manner में, quick review में। सबसे पहले start from the subscription receive 80,000 रुपीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, तो ये बिल्कुल एक वन टाइम में ही इसको बिल्कुल ग्रैब करना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि 31 मार्च 18 में प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ, लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर है, क्योंकि लास्ट ईयर एंड में एडवांस मिला तो करंट ईयर के लिए हुआ। सिमिलरली वैसे जैसे करंट ईयर के एंड में जो एडवांस मिलेगा वो फ्यूचर ईयर से रिलेटेड होगा, तो जो प्रीवियस ईयर मिला वो प्रीवियस ईयर के लिए फ्यूचर ईयर क्या हुआ? करंट ईयर। तो 4,500 हमने ऐड कर दिया, राइट। एडवांस एज ऑन 31 मार्च 18, एंड आई एम रिपीटिंग अगेन कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट में मेंशन किया है, बट इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट डाउन द होल स्पेलिंग, मींस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ब्रैकेट में एज ऑन डेट, राइट। वहाँ पे कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता है। तो 4,500 रुपीज, नाउ इट विल बिकम रुपीज 84,500 लेस नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 19, यानी क्योंकि करंट ईयर के एंड में मिला, फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर को, राइट। सो इसीलिए हमने ये ऐड करा था, क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड हो गया था, और जो एंड में एडवांस मिला आज 31 मार्च 19 को, ये रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड हो गया, फ्यूचर ईयर हो गया। सो माइनस कर दिया 5,000, नाउ इट विल बिकम 79,500 रुपीज। थर्ड लास्ट ट्रीटमेंट बच्चों, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था मिलना, तो यानी वो लास्ट ईयर से ही रिलेटेड है, अभी तो मिला ही नहीं है। और जो करंट ईयर में मिला होगा, यानी इस 80 में रिसीव हुआ होगा, तो वो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है और हमें करंट ईयर को फोकस करना है। तो 16,000 यहाँ पे लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन ओएस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18, 16,000 रुपीज। नाउ 63,500 हो गया after deduction of 16,000, 16,000 rupees. Next, subscription outstanding at last में as on 31st March 19, so related to current year हुआ, right? So related to current period है 12,000 rupees, then it will be added back. So add subscription outstanding as on 31st March 19, 12,000 rupees. So final total this plus this is equal to 75,500 rupees. Now we will see कि हमें रिसीव कितना हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, 80,000, लेकिन इसमें कुछ प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड था और कुछ फ्यूचर ईयर का एडवांस भी इंक्लूड था, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर को फोकस कर रहा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द करंट ईयर फिगर। और जब हमने इसमें ये एड लेस के एडजस्टमेंट किए रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर एंड करंट ईयर, सो हमारे पास कितना आया, ये करंट ईयर से पर्टेन करता हुआ 75,500 रुपीज। इट मीन्स दैट out of 80,000, only 75,500 rupees is related to current year subscription, right? So this is the whole treatment. This is one of the most important concept. Always यहाँ पे ये याद रखना है कि ऑफनली एग्जाम में इसका ट्रीटमेंट जरूर आएगा, और in almost in every 8 marks question you will find this particular treatment. So do concentrate. So students,
बच्चों अब हम लोग देखेंगे सेम क्वेश्चन में, अभी तक हम लोगों ने क्या ट्रीटमेंट देखा, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अंडर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट जैसा कि एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन जब मैं टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा था वहां पर याद करिए मैंने वहां पर मेंशन किया था ब्रैकेट में कि अगर आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है एट द बिगनिंग में और एट द एंड में, राइट। सो एडवांस इनकम इट्स योर लायबिलिटी, बैलेंस शीट एट दी, अगर वो एडवांस बिगनिंग का है तो बिगनिंग की बैलेंस शीट में ऐड करेंगे, मीन्स शो करेंगे, और एडवांस अगर एंड का है तो एंड की बैलेंस शीट में शो करेंगे ऑन द लायबिलिटी साइड, बिकॉज एडवांस इनकम इज ऑलवेज योर लायबिलिटी एज पर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। नेक्स्ट सिमिलरली उसी मैनर में जो आउटस्टैंडिंग है दैट इज एक्रूड भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। दैट दिस इज द इनकम विच इज येट टू बी रिसीव्ड एट द ईयर एंड, तो आपको ये इनकम अभी भी रिसीव होना बाकी है, सो इट इज एक्रूड इन नेचर एंड इट इज योर राइट टू रिसीव, वी कैन से दैट। सो इसको हम लोग शो करेंगे, वी विल रिकॉर्ड अंडर द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब सिमिलरली अगर लास्ट ईयर की है तो लास्ट ईयर के एसेट्स में यानी बैलेंस शीट में, यानी बिगनिंग में भी आप कह सकते हैं एज अ केस में भी, और अगर करंट ईयर के एंड की है तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में, राइट। सो कैसे रिफ्लेक्ट करना है, लेट्स सी। फर्स्ट ओपनिंग लेते हैं, यानी लास्ट ईयर की क्लोजिंग, करंट ईयर की ओपनिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4500 का है एज ऑन 31 मार्च 18, कुछ नहीं करना है, 18 का है ना, तो 18 का एडवांस है, प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर एडवांस इनकम इज योर लायबिलिटी ऑलवेज, प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर का लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में, राइट। तो यहाँ लिख देंगे सब्सक्रिप्शन, यहाँ मेंशन करेंगे सब्सक्रिप्शन received in advance, राइट। अब यहाँ पे आपको 31 मार्च 18 मेंशन करने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट में, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन, ठीक है, ऑन टॉप साइड में अंडर द बैलेंस शीट पे, राइट। कितना 4500 रुपीज, राइट, 4500 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मींस एसेट्स है आपकी 16,000 रुपीज, देखिए कब से रिलेटेड है, 31 मार्च 18 का, तो ये एसेट साइड में आ जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टॉप पे मेंशन्ड है, राइट। कितना 16,000 रुपीज, और क्योंकि ओनली यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करना है हाउ इट विल शोन ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, सो आपको बैलेंस शीट का टोटल नहीं करना है, इसलिए टोटल कॉलम में डैश, राइट। नाउ सिमिलरली बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19, यानी ये तो प्रीवियस ईयर की थी, ठीक है, और ये हमारा करंट ईयर का हो जाएगा क्योंकि ये हमारा करंट ईयर है, तो करंट ईयर वाला ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 19, कितना 5,000 रुपीज, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 19, 5,000, डेट मेंशन नहीं करना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज अबव, बट अमाउंट आपका करेंट ईयर वाला रहेगा, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, डेट मेंशन नहीं करना है, कितना आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का 31 मार्च 19, बहुत इजी 12,000, कॉलम में डैश डैश, राइट। सो देखिए बहुत इजी ट्रीटमेंट है ये, ओनली यू हैव टू रिफ्लेक्ट, और कोई इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 31 मार्च 18 प्रीवियस ईयर वाला जो बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, उसमें 31 मार्च 18 से रिलेटेड एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग एज वेल, राइट। और एसेट्स एंड लायबिलिटी में सिमिलरली जो 31 मार्च 19 पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू 31 मार्च as on 31st March 19, that is 5,000 and 12,000 outstanding. So this is a most important concept
एंड यहाँ पे आपने पूरा ट्रीटमेंट देखा, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अंडर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड सिमिलरली उसके पैरेलल टू मीन्स कैसे हाउ टू रिफ्लेक्ट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, वैसे तो जनरली मैंने जैसा कि बार बार कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मीन्स ये एक तरीके से वी कैन से दैट इट इज़ द हार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है ना, क्योंकि इन एवरी क्वेश्चन आपको ये ट्रीटमेंट मिलेगा लॉन्ग आंसर्स में, राइट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में एग्जामिनर शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में जस्ट 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट। सो उसमें क्या होता है कि वहां सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा होल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ना पूछ करके, ठीक है, और बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट ओनली कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यू सिमिलरली एंड वहां पे आपसे यू हैव टू आस्क दैट calculate the amount of subscription related to the current year and created to the income and expenditure account of the current year। So वैसे ही आप सिमिलरली यहाँ की तरह आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ इसका ट्रीटमेंट आता है देन मे बी ये 4 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा, इट विल नॉट कंटेन मोर देन 4 मार्क्स, राइट। सो दोनों ही तरीके से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो डू कॉन्सेंट्रेट एंड ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट टाइम।